Let's go for it. Some important carbohydrates. Some important carbohydrates. So let's see what are these. Let's start with the first one, which is sucrose. Let's write few things about sucrose, which are very important thing. Second, it is white. Basically, we are talking about cane sugar, and the sugar we are using at your home. That is your sucrose cane sugar. It is white, crystalline, and sweet substance. White, crystalline, and sweet substance. Soluble in water. And obtained from sugarcane. सेकेंड पॉइंट तो हमने अपनी लाइफ में एंजॉय भी बहुत किया यार. ठीक है ना. व्हाट इज दैट बेसिकली? व्हेन हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट. It's melting point. So Myra's asking to let her in. When heated above its melting point, it forms a brown substance called caramel. एंजॉय किया है ना कैरामल. कैरामल कस्टर्ड. कैरामल पॉपकॉर्न. राइट. It forms a brown colored brown colored substance called caramel. Third point is very important point. Its aqueous solution is its aqueous solution is dextrorotatory. With specific angle of rotation being plus 66.5 degree. हम राइटिंग प्लस ऑब्वियसली डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. ठीक है. अब देखो इसमें मजेदार सी चीज क्या है. ये मजा आएगा. देखो ध्यान से आप. सपोज मैंने शुगर लिया. अब इसमें
थोड़े टाइम के बाद ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी के साथ में क्या होता है, लेट्स लर्न H22O11 and H2O. You are going to get C6H12O6. This is glucose. Okay. Plus C6H12O6, which is fructose. Okay. Glucose is basically dextrorotatory compound and fructose is levorotatory. Okay. If I talk about glucose, it is having a dextrorotation of, it's having a dextrorotation of plus 52.7 degree. But if I talk about levorotation of fructose, this is minus 92.4 degree. Okay. Now, this was originally a dextrorotatory compound, but after dissolving in water, when it's forming glucose and fructose, okay? क्या कॉमन सेंस कह रहा है, किसका रोटेशन ज्यादा है, ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का? fructose. सही ना? तो जब इस मिक्सचर को आप, ये जो मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ लेवो रोटेशन, दिस मिक्सचर बिकम्स लेवो रोटेटरी. ओके, लेवो रोटेटरी. So if I talk about sucrose, that is dextrorotatory compound, when dissolved in water, it breaks into glucose and fructose. Glucose is dextrorotatory, fructose is levorotatory. The specific rotation value of levorotatory fructose is higher compared to dextrorotatory glucose, and that is why this mixture becomes levorotatory. So can I say there is inversion taking place? Dextrorotatory sucrose is converted into levorotatory solution. This is called invert sugar. Inversion is taking place. Inversion उल्टा हो जा रहा है, dextro से levo हो जा रहा है. Okay. So this is levorotatory. चलो ये जो हमने लिखा है इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं. 10 hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign, about change in the sign of rotation change in the sign of rotation from dextro to levo. Okay. Such a change is known as inversion of cane sugar.
and the mixture is known as invert sugar. Let's highlight this one. Just a minute. भाई भाटिया सर सो रहे हैं बढ़िया एकदम। कॉल किया मैंने अभी। कह रहा 7 बजे था ना सर। उसको लग रहा है कि अभी 7 नहीं बजा। चलो आगे बढ़े। चलो अब एक अच्छी सी चीज सीखने जा रहे हैं। उस चीज को पहले समझ लेते हैं। देखो एक वर्ड आता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इस फंडे को समझते हैं क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू में आ सकता है और मिड सेट में भी आ सकता है। तो थोड़ा इसके ऊपर फोकस करते बढ़िया वाला एकदम, है ना। चलो देखिए। सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना कैसे है। ठीक है ना। और इस लिंकेज को समझने के बाद ही हमें एक आइडिया आएगा कि कौन रिड्यूसिंग होता है कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है ना। तो लेट्स गो फॉर इट। कैसे बनाना देखो सुनो। लेट्स डू दैट। देखो एक चीज हमें ध्यान देना है इसमें। ओके। कि डायरेक्शन में कौन सा रख रहा हूं। क्लॉकवाइज जा रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ वो बहुत क्रूशियल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेट्स डू इट गाइस। सबसे पहले ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। ओके। लेट्स गो फॉर इट। एक ना बना ही लेते हैं यार इसको क्योंकि बार बार हमें लगेगा शायद सच में। बन जा नहीं बनाएंगे। डिटेक्ट ही नहीं करता है समटाइम्स। चलो ऐसे बना लेते हैं। Let's draw it like this only. Oxygen, sorry. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये हमने ऑलरेडी करा भी था। लेट्स राइट इट लाइक दिस। ये OH ले लिया हम लोगों ने। ओके दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है। और ये OH नीचे ले लिया तो अल्फा है या बीटा है। कैन समबडी हेल्प मी विद दैट। OH डाउनवर्ड में है ना मेरी। अल्फा होगा ना।
Here CH2OH H. This is H. This is OH. Okay. This is H. This is OH. And this is H. This is OH. Okay. So based on this thing, this is alpha. Okay. Alpha. Alpha D glucopyranose. Okay. Glucopyranose. Now listen carefully. This one is the carbon. Okay. This is the carbon which was earlier carbon double bond ONH. Do you remember? यही था ना वो aldehyde का group जिसको हमने बनाया. This is your anomeric carbon. Okay. So if I say anomeric carbon मतलब functional group का carbon वही है. If I say anomeric carbon, that is the functional group का carbon. Aldehyde or ketone का carbon. If I'm talking about glucose, that will be carbon of aldehyde. If I'm talking about fructose, that will be carbon of ketone. Because aldehyde है ना glucose का functional group और ketone का functional group. ठीक है. अरे सॉरी, फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है. तो ये सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया. अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट ना इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं, ट्विस्ट इसमें आएगा स्ट्रक्चर में. ट्विस्ट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. देखो फ्रुक्टोज पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. लिसन केयरफुली, यहाँ पे समझेंगे. नाउ लिसन, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ से चालू किया था, पता ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन ऊपर जाके 6 लिखा था, याद है? दिस वाज क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके. तुम लोग ना अपने नोट्स में फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन करो जल्दी से, पता को, तब ये कनेक्ट होगा. ठीक है, याद है? ऐसे किया था ना, ये 1 था, यहाँ पे OH डाल दिया था 2, दिस वाज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड यहाँ पे हमने 6 लिखा था. जस्ट चेक इट आउट, राइट ना? ये क्लॉकवाइज था. व्हेन आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, राइट साइड वाला नीचे आएगा, लेफ्ट साइड वाला ऊपर जाएगा, सही. लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है. ओके. देखो ध्यान से समझा रहा हूं मैं तुम्हें. देखो ध्यान से, एकदम एकदम बहुत फोकस होकर सुनो. मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2OH और यहाँ पे लिख दिया मैंने OH. ओके. कैन यू सी दैट दिस इज your first carbon, this is your second, this is your third, this is your fourth, this is your fifth, and अब फिफ्थ के बाद हम ऐसे देखो. अब सुनो सुनो, सेकंड पे देखो. जब मैं क्लॉकवाइज जाता था, ठीक है, सेकंड पे फोकस करो, OH नीचे है तो वो अल्फा होता था, एग्री? आना. लेकिन अब OH क्या होगा? OH नीचे तो अब ये अल्फा होगा या बीटा होगा? सब उल्टा हो रहा है यहाँ पे. will be beta. ये बीटा होगा. बात समझ में आ रहा? सुनो, जब क्लॉकवाइज जाते थे राइट साइड वाला नीचे आता था और हम उसको अल्फा बोलते थे, राइट. एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अब जो राइट साइड वाला है वो नीचे नहीं आएगा. राइट साइड वाला कहाँ आएगा? ऊपर आएगा. और जो लेफ्ट साइड वाला आएगा वो नीचे आएगा. बेस्ड ऑन दिस कहना है इसे कि ये लेफ्ट साइड पर है. यस. और अगर ये लेफ्ट साइड पे तो बीटा होता है. याद है वो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, राइट साइड पे एनोमेरिक पे लिया तो अल्फा था, लेफ्ट पे बीटा था. तो ये बीटा होगा. इज दैट क्लियर? क्या सारे लोग कनेक्ट कर पाए? ठीक है. सब उल्टा कर रहे हैं हम लोग, देखते चलो ध्यान से. थर्ड वाले पे फोकस करो, अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर निकालो. थर्ड वाले पे देखो, थर्ड वाले पे देखो, एग्जैक्टली उल्टा किया मैंने. देखो थर्ड वाले पर मैंने OH नीचे डाला और H ऊपर डाला. तुम्हारे पास जो फ्रुक्टोज का क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर होगा उसमें थर्ड वाले में OH ऊपर होगा, H नीचे होगा. चेक करो. है? अरे यस नो बोलो यार कुछ तो. है ना? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मिला नताशा? हैव यू गॉट इट? Yes, sir, I found it. You are just verifying these facts now. Yes, sir.
गुड. लेट्स गो ऑन फोर्थ वन. फोर्थ में तो मुझे बताओ OH ऊपर है और H नीचे है या कैसे है? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ कार्बन इन फ्रुक्टोज? बोलो बोलो जल्दी. अरे हम आस्किंग बाबा, फ्रुक्टोज ढूंढो जाके ऊपर नोट्स में. फ्रुक्टोज में फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है ओरिजिनली तुम्हारे पास जो क्लॉकवाइज OH स्ट्रक्चर. is down. OH इज डाउन, तो अब क्या करना पड़ेगा? Make OH go up. OH is going up and H is going down. Is that clear? Go on fifth one, fifth and sixth वाला. फिफ्थ में CH2H कहाँ है? अप है या डाउन है? up. अप है. अब क्या करेंगे यहाँ पे? डाउन. एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ, सब कुछ उल्टा हो गया. क्लियर है ये? गाइस बोलो जल्दी यार. Yes, sir. So what will be name of this compound then? This is beta D fructofuranose. Fructofuranose. Potential. ओके. अब ये नीचे है. If I want to write anomeric carbon, anomeric carbon, this one is anomeric carbon and this one is anomeric carbon. Okay, that's fine. Now, what are we going to do? देखो जरा. देख ध्यान से. ये यहां से जो OH है, ये OH से हम वाटर निकालने जा रहे हैं. H2O यहां से हम लोग फॉर्म करके बाहर निकालेंगे और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर लेंगे इस वाले बॉन्ड को. समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट हो जाएगा. ओके. यहां से वाटर निकाल रहे हैं हम लोग, यहां से डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं. जैसे ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर लेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? देखो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं टेस्ट. ठीक है. और इस प्राणी को भी करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं टेस्ट. ठीक है. जो unwanted material is contamination. It's replace as well. ये पूरा का पूरा रिमूव कर लो. Just bring it closer. Now, यहाँ पे आपको करना है इसको ज्वाइन, ऑक्सीजन और ये ज्वाइन. ये जो लिंकेज है इसने दोनों को ज्वाइन किया है. दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है. गेटिंग इट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहना है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म हुआ है, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में
वो कार्बन इन्वॉल्व है जो एनोमेरिक कार्बन थे, यस और नो? और अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो गया इस लिंकेज को फॉर्म करने में, इट मींस फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्री नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बिजी है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में। अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। जहां पर एनोमेरिक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, जो जहां पर वो नहीं फ्री होता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके, क्या ये क्लियर है सारे लोगों को? इसका नाम लिख लेते हैं, व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें तुम्हें एक को ब्रांच लेना पड़ेगा, एक को मेन चेन लेना पड़ेगा। इसको ब्रांच ले लेते हैं, इसको मेन चेन ले लेते हैं। व्हाट विल बी नेम? दिस विल बी नेम्ड एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल। क्योंकि ब्रांच ले रहे हो तो वाई एल लगा देंगे, जैसे हम लोग मिथाइल इथाइल लिखते थे ना, वैसे ही ग्लूकोपाइरेनोस से ग्लूकोपाइरेनोसिल हो जाएगा ये। ग्लूकोपाइरेनोसिल। देन बीटा डी ग्लूकोप्यूरेनोसाइड। It will be like this. You can mention this point. There is no free carbonyl group. ठीक है ना? So sucrose is non-reducing sugar. Non-reducing. Okay. Guys, we are done with muta rotation now. करा ना हम लोगों ने म्यूटा रोटेशन, म्यूचुअल रोटेशन। तो ये लिख लेते हैं, ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन। ऑल Sir, I think your screen is lagging. this वापस show। इसको लिख लो वापस। How non-reducing sugars do not show, all non-reducing sugars do not show beta rotation. Wait a minute, मैं इसको करता हूँ इसको।
You guys are done writing ना, ये एक बार स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, वापस कनेक्ट करता हूँ. That's fine now. ठीक है. सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है. थोड़ा सा नॉन रिड्यूसिंग के बारे में लिख लेते हैं. सुक्रोज हैज stable acetal linkage. When I say acetal linkage, I'm talking about glycosidic linkage. And in aqueous solution, it cannot give carbonyl group. When I say carbonyl group, I'm talking about free aldehyde and free ketone group. ठीक है ना? Hence, it does not reduce. Does not reduce Tollens and Fehling solution. So ये important point है ये वाला, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ. Let's move toward next carbohydrate, which is maltose. चलो थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं. It is obtained by partial hydrolysis ठीक है, of starch by the enzyme diastase. Present in malt. ठीक है. What is malt? You know? बताओ. Anyone? These are germinated barley seeds. बियर फॉर्मेशन में माल्टेज का, माल्टोज, ये सबका बहुत, जर्मिनेटेड बार्ली सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. चलो देख लो. स्टार्च ले लिया हम लोगों ने. Two molecules of starch, C6, H10, O5 enzymes. Diastase.
and C12 S22. Okay. This is maltose. This is starch. Okay. एक पॉइंट है हाइड्रोलिसिस of 1 mole of maltose gives 2 moles of D-glucose. माल्टोज को ब्रेक करोगे दोनों ग्लूकोज से मिलेंगे. सुक्रोज को ब्रेक किया तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता था, राइट ना. माल्टोज को ब्रेक करोगे दोनों ग्लूकोज मिलेंगे. गिव्स 2 moles of D-glucose. Okay. चलो नेक्स्ट पॉइंट. चलो इसको समझने की कोशिश करी जाए. इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. चलो इधर से एक चोरी कर लेते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर को. Sorry. इसमें अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसमें कि ये रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, और मजा आएगा देखो. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ओके. Similar manner, this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. Can you see that? Right? अब इसमें कैसे बॉन्ड फॉर्म करना है यार? इसमें बॉन्ड यहां से गैप करना, ये और ये गैप करना. अब इसको गैप कर लेते हैं. इसको गैप करने के बाद अच्छा मुझे एक बात बताओ. इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रुप, ये एनोमेरिक वाला ले रहे हो तुम, क्या तुम सेकंड वाले में भी एनोमेरिक ले रहे हो कि नॉन एनोमेरिक कार्बन ले रहे हो? नॉन एनोमेरिक. तो कहने से इस वाले बंदे का एनोमेरिक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप फ्री है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये यहां से रिड्यूस करा सकता है. यस. समझा? सो दैट इज व्हाई माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज माल्टोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व नहीं होते. ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 to C4 बनाता है. ऊपर वाला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या था? C1 to C2 था ना. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये जो था, मेंशन कर लो इसको, ये C1 से C2 था, और दोनों एनोमेरिक थे. ये तुम्हारा C1 से C4 लिंकेज बनाएगा. क्या बोलते हो? सही ना? तो इस तूफानी को बना लेते हैं. इसको कॉपी करते हैं. आजा भाई. एक और ले लिया हम लोगों ने. ज्वाइन करा लो मस्त.
ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे डी एनोमेरिक कार्बन है ना, और यही वाला तुम्हारा रिड्यूसिंग है। दिस इज अगेन ग्लाइकोसाइडिक linkage, and this one is C1 to C4. ओके, C1 to C4 है ये, मस्त एकदम। तो ये बात लिख लेते हैं हम लोग। So let's write this point. Maltose is reducing sugar. Okay. It forms ओसाजोन भी बनाता है। It forms an ओसाजोन। Undergoes mutarotation. Mutarotation. Reduces tolerance and filling solutions. Reduces tolerance and filling solutions. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया हम लोगों ने। ओके, चलें लैक्टोज लैक्टोज खेल लेते हैं। मिल्क में होता है ना लैक्टोज, मिल्क में जो स्वीटनिंग होती है थोड़ी सी लैक्टोज की वजह से होती है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स लैक्टोज, दैट इज मिल्क शुगर। चलो लेट्स राइट few points about lactose. Found in milk, पहला पॉइंट यही लिखना चाहिए। And on hydrolysis with enzyme, इसमें एंजाइम भी लगेगा। इसका एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज give equimolar mixture of, gives equimolar mixture of D-glucose and D-galactose. D-glucose and D-galactose.
ओके, चलें इसके साथ वाला खेल खेल लें। मैं गैलेक्टोज बनाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो डिसाइड करेंगे ना फिर रिड्यूसिंग है कि नहीं रिड्यूसिंग है। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, सुनो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन आई सी दिस इज नॉन रिड्यूसिंग हाफ एंड दिस वन इज रिड्यूसिंग हाफ। तुम इसमें कह सकते हो कि ये जो है रिड्यूसिंग हाफ है, ये नॉन रिड्यूसिंग हाफ है। गलत बोल दिया मैंने। ये नॉन रिड्यूसिंग हाफ है, ये वाला रिड्यूसिंग हाफ है, ये रिड्यूसिंग हाफ है। इज दैट क्लियर? तो कभी कभी ऐसे भी टर्म्स यूज कर दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये क्या है। चलो तुम ना एक काम करो, सबसे पहले मैं गैलेक्टोज बनाने जा रहा हूँ। तुम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तुमने बनाया था ना, हमने बनाया था ना एपिमर्स। अरे हाँ भाई, देख लो। तुम पहले इसको लिख लो। तुम्हें मुझे हेल्प करना है कि लेफ्ट कौन रहेगा, राइट कौन रहेगा। वैसे मुझे पता, बट आई जस्ट वांट यू टू डू इट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑब्वियसली सिक्स को तो ऊपर ही लिख लो यार। CH2OH and H here. चलो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं इसका कौन सा वाला फॉर्म बना रहा हूँ देख लेना। मैंने ओ एच ऊपर रखा है और एच नीचे रखा, तो ऑब्वियसली आई एम टेकिंग द बीटा फॉर्म, राइट। बीटा बीटा फॉर्म ले। सेकंड पे कैन यू हेल्प मी, सेकंड वाले पे देखो। CHO के नीचे आ जाओ, सेकंड कार्बन पे देखो। ओ एच राइट में कि लेफ्ट में? गैलेक्टोज ओपन करो। गैलेक्टोज मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, 8 स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज, मैनोज, यूज, ये सब बनाए थे ना। उसमें देखो गैलेक्टोज, देखो गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज देख के मुझे बताओ सेकंड पे क्या आने वाला है। जल्दी करो यार, या मैं डायरेक्ट बनाना चालू करूं? तुम देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया आएगा क्या। So H is up. एच इज अ वेरी गुड, यही सुनना था। ओ एच इज डाउन। गो ऑन थर्ड वन। थर्ड कार्बन। HSO. हाँ बोलना, थर्ड पे क्या है? HSO. थर्ड पे एच इज अप। नहीं यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम। चेक कर लो जाके। दिस इज गैलेक्टोज। विच फॉर्म? विच फॉर्म? बीटा फॉर्म, हाँ ना। चलो, अब इसके साथ हमें एक लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हम यहाँ से चोरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं OH, और चोरी इधर से करनी है तुम्हें। यहाँ से चोरी करनी।
ठीक है, अब तुम्हें एक आइडिया तो आ ही रहा होगा कि रिड्यूसिंग हाफ कौन है और नॉन रिड्यूसिंग हाफ कौन है। इधर वाला ये जो है ये भी बीटा फॉर्म ही लेना पड़ेगा, दोनों बीटा फॉर्म ही चाहिए होते हैं इसमें। तो एच को अप रख दो, एच को नीचे रख दो, दिस इज ऑल्सो बीटा फॉर्म। चलो अब इनमें लिंकेज डेवलप कर लेते हैं। ये बन गया तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, इफ आई राइट that galactose, this one is your galactose, and if I say this is non-reducing half, this is non-reducing half, I don't think so that you'll be having a problem. And second one is glucose. This is your reducing half. Okay, because it has its anomeric carbon free. Okay, guys. Can I say this is also making a C1C, C1C4? Yes. C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये था, तो थोड़ी सी कुछ और बातें लिख लेते जो हमने अभी रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग आ चुका है, तो लेट्स राइट फ्यू पॉइंट्स, है ना। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, reducing sugar forms osazole, reduces swelling and Collins solution undergoes Newton rotation। जो भी रिड्यूसिंग वाली जनता करती है उसको लिख देते हैं अंडरगोज न्यूटन रोटेशन। ओके, गाइस ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बता दो जल्दी। दोनों के दोनों बीटा फॉर्म ही है, हाँ ना। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलो इसको ड्रॉ कर लो, बना लो यार, ये पूरा प्रॉपर लिख लो। अभी बैक इन अ मिनट, हाँ।
चलो लेट्स मूव इट. स्टार्च कर लेते हैं. इसको अगर हम लोग स्टार्च पूरा ही लिख लेते हैं, स्टार्च अमाइलम. This is C6H10O5N. N varies from 100 to 3000. So these are macromolecules. Yes, sir. So what is amylum? नाम है रे. Chief Food Reserve of plants. And found mainly in seeds, roots, etc. Wheat, maize, rice, potatoes, barley, bananas, sorghum, are main sources of starch. Okay. चलो. Third point, starch occurs in the form of granules. In the form of granules.
which vary in shape and size shape and size depending on plant source. Okay. चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये पॉइंट लिख सकते हैं कि occurs in all green plants. चलो इस तूफानी को देखा जाए. एक और पॉइंट हमें लिखना चाहिए यार. ब्लू कलर विथ आयोडीन, ये तुमने एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा ना. 9th 10th में रहता है ना स्टार्च का आयोडीन के साथ में ब्लू कलर, वो मेंशन कर लेते हैं. ब्लू कलर विथ आयोडीन is due to alpha amylose. Alpha amylose forming an inclusion complex. कॉम्प्लेक्स बना कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो तुम. कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना रही है. चलो कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज ग्लूकोज खेलना है, खेल लेते हैं. ठीक है ना. 1 4 1 4 का चेन बनाते चलना है. इज दैट क्लियर? देखो एक काम कर लेते हैं यहाँ से ना. पेस्ट पेस्ट आ रहा है एकदम. पेस्ट आ रहा है. नहीं यार, ये नहीं. चोरी करते हैं हम लोग ग्लूकोज को. देखो तो इस फंडे को समझ लेते हैं. सारे के सारे अल्फा फॉर्म ही होते हैं. सबसे पहले सबको अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. रुक जाओ, ये OH को नीचे करने दो. सो दिस विल बी H and this will be OH, है ना. यहाँ पे H, यहाँ पे OH, है ना. और हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. इसको थोड़ा सा shift कर देते हैं. अभी ठीक है. और यहाँ पे ऑब्वियसली OH 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 and H. ठीक है ना. अब इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें यूज करना है. ठीक है. और वो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ से ये गया, है ना. और ये गया. बट एक चीज ध्यान में रखना है,
कि अब ये बड़ा सा पॉलीमर है, तो यहाँ पर हम लोग N-2 लिख दे रहे हैं। टू क्यों लिख रहे हैं? जो टू लेफ्ट राइट की पब्लिक उसको माइनस करके लिख दिया। N कैन बी 100 to 3000, वेरी बिग यूनिट है ना। अब ये पूरी की पूरी जनता बनेगी कैसे फिर यार? यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यार, यहाँ पे होगा ओके। सब ये बनेगा कैसे यार? देख लो, ये इस तरीके के फॉर्मेशन, और ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्योंकि सारे के सारे फॉर्म अल्फा ही है इसके। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। लिंकेज डेवलप करना हमें भाई, यहाँ पे इनको हटाओ और यहाँ पे इसको हटाओ। लेट्स डेवलप a linkage here. It will be oxygen to oxygen, right? यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, ये लिंकेज बन चुका है हमारा कंपाउंड। ये एन टाइम्स होगा, राइट ना? तो ऐसे ये पूरा का पूरा बड़ा सा लिंकेज बन जाएगा यार। एंड ये जो लिंकेज है, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है। दीज आर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक्स। ये वाली भी C1 to C4 ही है, ठीक है ना? ठीक है ना, इसको अमाइलोज भी कहते हैं। चलो कुछ और बातें भी इसमें लिख लेते हैं। एन एक्वियस सॉल्यूशन एंड इसका नाम लिख लेना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोअमाइलोज। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा amylose slowly forms a precipitate. Slowly forms precipitate. Due to due to tendency to stay insoluble in solution. ठीक है, तो तुम कह सकते हो अमाइलोज से जो बना हुआ अमाइलोपेक्टिन होता है, तुम कह सकते हो कि अमाइलोपेक्टिन is insoluble in water and stable towards stable towards hydrolysis। वर्ड्स दो चीजों के लिए होता, बोथ हाइड्रोलिसिस टू वर्ड्स
both hydrolysis, नहीं hydrolysis 2 maltose आएगा ना, towards नहीं आएगा, hydrolysis 2 maltose, by the enzyme and to D plus glucose by dilute acid. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अल्फा अमाइलोज consist of an unbranched chain with a molecular weight varying between 10,000, इसमें n का वैल्यू नियरली 60 हो जाता, एंड इतना, जिसमें n का वैल्यू नियरली 6,000 हो जाता, and depend on source and treatment of alpha amylose. ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज हम कर सकते हैं, हमने ऊपर लिखा कि एंजाइम से थोड़ा सा स्टेबल रहता है लेकिन 50% रिएक्शन देता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्च के बारे में लिख लेते हैं, देखो ध्यान से। हम स्टार्च को अगर मैं C6H10O5 टाइम्स अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो 50% ही देता है, ये ज्यादा नहीं देता। H+/H2 एसिड हाइड्रोलिसिस किया, so you will get C6H10O5, ठीक है ना। N dash, always remember N dash is smaller than, क्योंकि 50% ही करता है ये रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस। H2O लिख दिया, देन यू आर गेटिंग माल्टोज C12H22O11, okay, which on further hydrolysis H plus H2O, and you have to use maltase. माल्टेज यूज किया है, माल्टेज अच्छा से लिख लेते हैं, माल्टेज, ओके। और माल्टेज यूज किया तो तुम्हें मिल जाएगा C6H12O6, which is basically a D-glucose, okay। ऐसे लिख लेते हैं,
n is greater than n dash. तो ये पूरा स्टेबल होता है ना, पूरा रिएक्शन नहीं करता, ऑलमोस्ट 50% ही रिएक्शन करता है। चलो थोड़ा इसका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है ना। नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। ये टर्मिनल वाली जनता भी किसी न किसी को कनेक्ट करती है, तो लिख सकते हो स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड। स्टार्च is non-reducing saccharide. It does not reduce tolerance or swelling solution and does not form oxazole. Just a minute. चलो वो अमाइलोज अमाइलो पैक्टिन वाला भी बात लिख लेते हैं, उसमें कंफ्यूज हो गए तुम लोग, क्या सीन है उसका, ये भी लिख लेते हैं। चलो, स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। स्टार्च is not a single component. ठीक है, it is a mixture of two components. It is a mixture of two components. Okay, कौन कौन है भाई? Amylose, which is like 10 to 20%. Okay, and water insoluble component called amylopectin. Amylopectin, which is kind of 80 to 90%. Okay. एक और पॉइंट जगह तो लिख लेते हैं, बोथ अमाइलोज एंड amylopectin are polymer of glucose.
जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा अमाइलोज के बारे में लिख लें क्या? अमाइलोज, और बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिकॉज फैक्ट बेस है ना ये। थोड़ा सा अमाइलोज और पैक्टिन के बारे में दो दो लाइन लिख लें, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तुम बोलोगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, 1.5 घंटे से तो यही सब कर ही रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बन जाएंगे अभी हम थोड़े से। है ये चैप्टर भी, ऐसा क्या कर सकते हैं? आया तो बेचारा थक गया। हाँ, Yes. यू वर डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर राइट? No, sir. झूठा, बीच बीच में ऐसे सब तो कर रहा था मैं। भाटिया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? आपका अलार्म नहीं बजा या फिर आपको पता ही नहीं था कि लेक्चर है? Yes, I was sleeping. मैं इसको कॉल करके उठाया हूँ लिटरली, और तू ऐसे ही आके बैठ गया ना, बस तूने मुंह धोया और स्पेक्स पहने और आ गया ना। गुड, चलो। देखो दोस्तों, इसमें बस एक थोड़ा सा पेक्टिन और अमाइलोज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सेल्यूलोज करेंगे, चैप्टर को बाय बोल देंगे। उसके बाद विटामिन प्रोटीन वाला तुम्हें एक बार एनसीईआरटी से पूरा रीड करके रखना है, तुम रीड करके रखोगे तब हम उसको डिस्कस कर पाए, ठीक है ना? अच्छे वेटेज का चैप्टर, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बचा हुआ टॉपिक जो विटामिन एंड ऑल का, वो तो हमें मायरा पढ़ा देगी। हाँ मायरा, you'll teach us ना? अरे, Guys, अरे you just have to tell us कि okay, deficiency of this vitamin will bring this disease। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, और थोड़े से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। चलो इसको निपटाते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, देख लो। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, पेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना? अरे जैम एम खाते हैं ना, जेल्स खाते हैं ना, जेली, फ्रूट जेली खाते हैं, तो पेक्टिन पढ़ना जरूरी है भाई, फ्रूट जेली का बहुत एहसान है तुम्हारा, जानना पड़ेगा थोड़ा पढ़ाई करके उसकी। चलो, अमाइलोज सबसे पहले करते हैं, पेक्टिन उसके बाद करेंगे। पहला पॉइंट तो यही लिखना चाहिए, अमाइलोज इज वाटर soluble। ठीक है, एंड गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। विथ आयोडीन, it may have 100 to 3,000 glucose units, you know, with molecular mass varying from 10,000 to 5 lakh। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज इट इज अ लीनियर पॉलीमर लीनियर पॉलीमर of
glucose with C1, C4, alpha glycosidic linkage. ओके, थोड़ी सी इज्जत पेक्टिन्स को भी दे देते हैं, बहुत फ्रूट जेली खाई हमने। पेक्टिन्स found in plant and fruit juices. Fruit juices. They can gelate their solutions. इसी से जेली बनती है। ब्रैकेट पे लिख लेता हूँ, फॉर्म जेलीज। They have high molecular weight. And are polygalactouronic acid. Polygalactouronic acid. Acid with carboxyl group. Partially अगर आप पेक्टिन्स का रिएक्शन करा देते हो किसी भी कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको पार्शियल एस्टरेफाइड करा गया मेथेनॉल के साथ, तो ये पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड बनाता है ये। ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, डन। दो चीजें छोटी छोटी बची है, एक बचा है सेल्यूलोज और एक बचा है ग्लाइकोजन। इसको लिखते और खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। चलो सबसे पहले सेल्यूलोज के बारे में बात कर लेते हैं। एक 5 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं ना, बैठे बैठे टेढ़े हो गए। चलो, बी बैक इन 2 मिनट।
चलो निपटा लेते हैं भाई। अरे सब भाग गए क्या यार? कहाँ भाग गई जनता? मुझे लगा स्नैप लेने चला गया। चलो फटाफट इस ब्रेक में 2 मिनट सो लिया जाए। No, sir. चलो सेल्यूलोज। बचपन से पढ़ते आ रहे, सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, राइट ना? चलो थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। कलरलेस सॉलिड insoluble in water. Colorless solid insoluble in water. Insoluble in water. And ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें भी डिजोल्व नहीं होता भाई ये। मस्त आदमी है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डिजोल्व कहाँ होता है, वो भी लिख लेते हैं। सॉल्युबल इन अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इस अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को मतलब फॉर्म करने वाले, सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले प्राणी का नाम था, ठीक है ना, स्वाइजर। इनका नाम लिख लेते हैं, SCHWEIZER। So that is why it's called Caesar's reagent। उसी में ये प्राणी डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। और एक और जगह डिसॉल्व होता है, और इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दो जगह पे डिसॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट, it is a regular polymer of it is a regular polymer of D-glucopyranose। Glucopyranose connected with beta 1,4 glycoside base। Connected with beta 1,4 glycoside base। It is a straight chain polymer structure बना लेते हैं। It is straight chain polymer। चलो स्ट्रक्चर ले लेते हैं इसका। इसके स्ट्रक्चर के लिए कहाँ से कॉपी पेस्ट करके चोरी किया जाए? ग्लूकोज इलेक्ट्रोज, ग्लूकोज चोरी कर लेता हूँ। ग्लूकोज ही लेना हमको इसमें। यहाँ पे कर लेते हैं। एक और ले लेते हैं। दोनों के दोनों हमें बीटा फॉर्म ही लेने हैं,
तो पहला वाला तो लिटरली बीटा फॉर्म है ना। और दूसरे वाले में भी हम काम कर लेंगे ऐसे कुछ तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे किस तरीके से ये बनेगा। दिस इज बीटा फॉर्म, दिस इज बीटा फॉर्म। ओके, एंड इसमें देखो लिंकेज कहाँ से करेंगे हम लोग। इसको अच्छे से लिख के फिर लिंकेज करो। देखो यहाँ पर ओ एच लिख लो, यहाँ पर एच लिख लो, ये तो सही है। देखो यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट करके निकालना तुम्हें, H2O निकालना है और यहाँ पर लिंकेज डेवलप करना है। अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, पॉलीमर है तो यहाँ से भी, इस वाली जगह से भी आगे एक और जनता ऐसे कनेक्टेड रहेगी आगे, है ना। यहाँ से भी कोई पीछे से कनेक्टेड रहेगा क्योंकि ये पॉलीमर बना रहे हो, एन टाइम्स है पूरा का पूरा। तो कंपाउंड विल बी लाइक दिस। कंपाउंड विल बी लाइक दिस। एक मिनट, ये देखो कंपाउंड विल बी लाइक दिस, उसको बना लेते हैं। देखो इसको ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ से ऐसे, ठीक ना, ऑक्सीजन डाल के इसको ऐसे छोड़ देते हैं कि कहीं और पे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल के हमने ऐसे छोड़ दिया हुआ है। ये किसी और के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पॉलीमर है ना ये, एन टाइम्स। और ये बीच में से इसको कनेक्ट कर लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के। ये बन गया तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा, दोनों बीटा ही फॉर्म थे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये तुम्हारा स्टार्च का स्ट्रक्चर है, सॉरी सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है। एक दो पॉइंट्स और है सेल्यूलोज के बारे में, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जनरल इंपेरिकल फॉर्मूला, C6H10O5 है, सेल्यूलोज प्लस वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम इसमें। सेल्यूलोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, you will get 96% of crystalline D-glucose. D now. Number of monomer units
मतलब n का वैल्यू लिख रहा हूं मैं। हंड्रेड, सॉरी 100 नहीं होता, 1000 होता है। 1000 to 1500 in one molecule. Does not show muta rotation like starch. Does not show muta rotation like starch. Non-reducing sugar. ठीक है। चलो थोड़ी सी ग्लाइकोजन के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लेंगे and then we'll be done with the chemistry part of the chapter. Vedha, are you sleeping? No, sir, I'm here only. अच्छा, I So I thought, just, so I just went to get some water. okay. चलो ग्लाइकोजन कर लेते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को। Glycogen is having formula C6H10. Sir, can you scroll up a bit? Yes, beta. Just a minute, right? Then, chalo. Let's talk about glycogen. Found in nearly all animal cells. All animal cells. Occurring mainly in liver. It is the reserve carbohydrate of animals. बोलते हैं ना कार्ब्स, वही है रिजर्व carbohydrate of animals and often known as animal starch. Animal starch. ठीक है ना? इसको प्लांट सोर्सेस से भी आइसोलेट किया गया। Has been isolated from
ground sources algebra. White powder soluble in water. Soluble in water. Solution giving Opalese red color with iodine. On acid hydrolysis, gives P plus glucose. ये देता है molecular weight varies one ठीक है and contains highly branched chains. Structure similar to amylopectin but with more cross linking. Okay. So we are done with the glycogen as well. अभी अमीनो एसिड्स बचेंगे हमारे पास अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बहुत सही अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स बचेंगे इसमें तुम्हें एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करके रखनी है मैं करा दूंगा बट उसके पहले एनसीईआरटी गो थ्रू करके रखनी है और उसमें थोड़ा याद करने वाले फैक्टर्स बहुत ज्यादा है इनफैक्ट ये सब भी तो याद करने वाले फैक्टर्स ही हैं So, उसको याद करने वाली प्रोसेस थोड़ा लेट ही करना अच्छा देयर इज अ क्वेश्चन गाइस पॉलीमर नहीं है ना तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं होगा सीबीएसई का तो हंड्रेड सॉरी इट्स नॉट देयर ना ठीक है तो वो जेई के सिलेबस में भी नहीं है जेडब्ल्यू मेन के सिलेबस में
तो उसको रहने देते हैं फिर। नाउ तुम्हारे छोटा सा होमवर्क रहेगा, तुम्हें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स पढ़ के रखना है एक बार। विल बी डूइंग दोस थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ, सफिशिएंट एनफ हो जाएगा वहां से। व्हाट इज द चैप्टर वी आर प्लानिंग, क्या अभी इसके बाद क्या शुरू करने का प्लान कर रहे तुम लोग? बोलो जल्दी से। I think more chapter. मोल से शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। मोल वाला पार्ट शुरू कर लेंगे, फिर इक्विलिब्रियम पार्ट निपटा लेंगे। अंश ने एक टॉपिक मेंशन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हमने वो चीजें नहीं करी हुई है। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था कि वो करने के लिए अपने को आयनिक इक्विलिब्रियम का, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, तो वो हो पाता है। तो उसको तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी रहता है। ठीक है सर। उसमें Yes, ना sir. इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी का फंडा है कि कुछ का कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ता है, कुछ का इनिशियली बढ़ता है फिर कम हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट होता है उसमें। लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लियर होते हैं। तो विल बी डूइंग दोज, वो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए इक्विलिब्रियम लगता है, ठीक है ना? तो Yes, sir. मोल शुरू कर लेंगे और ठीक है। So, and thermodynamics also. हाँ हाँ, सब सब कर लेंगे। अभी जो उस दिन प्लान किए थे ना 5-6 चैप्टर्स अपने, अपना टारगेट क्या है मायरा मैम? Finish by November. दिवाली तक अपने को सिलेबस एंड कर लेना है और वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम रिवीजन शुरू। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जाओ, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मिलते हैं कब? Tuesday. कब है ट्यूसडे? Tomorrow. टुमारो इटसेल्फ। कह रहा ट्यूसडे, ऐसा लग रहा है इसको कि 2-3 दिन के बाद ट्यूसडे आने वाला। टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। चलो गाइस, कल मिलते हैं यूजुअल टाइम 7:15। टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you so much. Thank you.